बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी तबीयत कैसी है? अब बेटा तबीयत बेहतर है अब तो, लेकिन मुश्किल चल रही है मुस्तफिल। चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। Uh, let us look at what we have done up to now as far as following the book that we have selected as a textbook of our course. We are in fourth chapter, general vector space. We have discussed the article 4.1, real vector spaces, where we learned what is a vector space that requires a set of vectors and a set of scalars. A mechanism of adding vectors and taking a scalar multiple of a vector. And then 10 axioms are required to be satisfied in order that the set of vectors is a real vector space. When we say use real vector space, it is in two sense. एक तो वाकई कब होगा vector space, और दूसरा real vector space का मतलब है scalars used are real numbers. Then we talked about subspaces, and we learned how a subset of a vector space can be called a subspace of the given vector space. Especially we considered the fact that every subspace that a vector space can have must contain the zero vector. Sometimes we find that if you are given a vector space, there are different subspaces of the vector space, and two of the vector spaces are trivial. The vector space itself, क्योंकि वो भी खुद अपना subset है, or zero vector itself, a set which contains only zero vector, is also a subspace. So two trivial subspaces. Other subspaces, if we have, then the basis of a subspace should not include zero vector. There are many properties that we studied. A subset of a vector space will become a subspace if the subset is closed under addition and scalar multiplication, and then it qualifies as a subspace of the vector space. We considered the idea of linear independence, and we say that the vectors given are linearly independent if their linear combination is a zero vector, only in case all coefficients used for scalar multiplication of the vectors are identically zero. If a non-zero with a non-zero coefficient, you make a linear combination of given vectors and it comes out to be zero, then it is the set of vectors is not linearly independent. So our test for finding whether a given set of vectors is linearly independent or not, we take the linear combination A1 V1 plus B1 V2 or A2 V2 plus A3 V3, so on, up to AR VR if there are R vectors. Equate it to zero, that results into a system of equation. If that system of equation has a unique, hello? Somebody was saying something? So if the linear combination of a given set of vectors is equal to zero, that results into a system of equation. If the system of equation has a unique solution, then we say that the given vectors are linearly independent. Then we studied the idea of coordinates and bases. We studied what is a basis set. If you have a vector space and you are given some vectors, 2, 3, 4, 5,
If these vectors are linearly independent and span the whole vector space, then we say that the given set of vectors forms a basis. Now, in a vector space, there is always a standard basis that contains vectors of the type 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, blah, blah, that have all components 0 except 1. So standard basis के अलावा there can be many other bases for the same vector space, because you can have, for example, in R2, any two non-parallel vectors make the basis of a given vector space R2, because linear combinations of non-parallel vectors generate every point in this R2. Similarly, in R3, three non-coplanar vectors and so on. आपके पास कोई arbitrary base है and you are given an arbitrary vector and you find the coefficients in the linear combination that equates the given vector, यानी basis vectors लिए उसका linear combination बनाया, उसको एक arbitrary vector से equate किया, सिस्टम इक्वेशन बनेगा, उससे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालें. दोस कोफिशिएंट वैल्यूज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट आर्बिट्री वेक्टर related to the given basis. And this is what we were discussing last time. So I'll catch up with basis of a vector space. Spanning set. Spanning set is the set of all linear combination of a given set of linearly independent vectors. R3 की examples हमने discuss की. फिर dimension of vector space भी हमने इसके वक्त define कर लिया था. हमने कहा था कि किसी भी vector space के कोई भी कई bases हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो bases होंगे, any set of vectors v1, v2, v3, vn, which is linearly independent, then that spans the whole space V, is a basis. There can be many bases. लेकिन हर base में number of vectors same. And then this number of vectors in any base of any vector space is called the dimension of vector space. That's the reason that R square is has a basis in which there are two vectors. The standard basis है. There can be any non-parallel vectors. R3 जो है three dimensional है, इस वजह से नहीं कि हमें तीन एक्सिस बना दें, यानी ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं. Standard vectors 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 are basis vectors. There can be non-standard bases, any three non-coplanar, and set of all polynomials of degree up to 2. It has no geometry involved in this, but polynomials of degree up to 2 are spanned by linearly independent polynomials 1, x and x square. 1, x और x square क्यों linearly independent है? इसलिए linearly independent है कि इनमें से कोई एक vector cannot be obtained by multiplying the other vectors by a scalar. यानी x square किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो वो x नहीं बन सकता, x को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर नहीं बन सकता, 1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो ना वो x बन सकता ना x स्क्वायर. So 1x and x square in a sense form the standard basis of the space of polynomials. And since there are three vectors in the basis, and linear combinations of these three vectors are the polynomials that we're talking about. So the space of polynomials of degree, all polynomials of degree up to 2 is a three-dimensional space. Similarly, a set of vector space of all polynomials degree 5 up to 5 will be six-dimensional vector space. So we considered some examples. Then coordinates related to basis, जैसे भी मैंने कहा कि मेरे पास एक basis है और R3 का पहले मैंने ये चेक करना है कि basis है कि नहीं है, और उसके बाद देखना है कि एक आर्बिट्री वेक्टर है 4, 5, -2, उसका एक तो ये कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स,
लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम करते वक्त जब तो ए बी सी की वैल्यू निकलेंगी, दे विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज वेक्टर्स। और ये प्रोसेस करके यहाँ हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन 3 वेक्टर्स से इनको चेक किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 3 वेक्टर्स हैं, R3 को स्पैन करेंगे, स्पैनिंग चेक की। स्पैनिंग किस तरह चेक करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन को आर्बिट्री वेक्टर एक्स वाई जी के बराबर रख दिया, सिस्टम इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व किया और ए बी सी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी हासिल किए। एंड मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ ये, so you choose any x y z, you will find the coefficients a b c that satisfies this equation। और इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक्स वाई जी की जगह 4 5 -2 रख दिया, जो कि सवाल में कहा गया था। 4 5 -2 के कोऑर्डिनेट्स निकाले रिलेटेड दिस बेसिस। तो जब हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 4 5 -2 के बराबर रख दिया, we have a system equation, we solve them, and we get a unique solution, and that unique solution tells us that the value of A is 11/7, value of B is -19/35, and value of C is 8/5। इसका मतलब है वेक्टर 4 5 -2 क्या को जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस सेट बनाया जाएगा, तो जो कोफिशिएंट आएंगे ए बी सी, they are coordinates of this vector in related to this basis, this basis. As we mentioned that there can be many bases of the same set, same vector space, तो हम किसी भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू एक बेसिस भी लिख सकते हैं, दूसरे बेसिस भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखे हमने। हमारे पास ये बेसिस था तो 4 5 -2 के ये कोऑर्डिनेट्स आए। अगर कोई और बेसिस होता और फिर यही प्रॉब्लम सॉल्व करते तो इसी वेक्टर 4 5 -2 के कोऑर्डिनेट्स कुछ और आते, उसको हम यहाँ जो भी बेसिस सेट इस्तेमाल किया है उसका रेफरेंस लिखकर ये बताते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड टू दिस बेसिस। तो इफ देयर कैन बी मल्टीपल बेसिस, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर बेसिस, एक वेक्टर के coordinates in one basis can be transformed into the coordinates of the same vector in another basis। तो यहाँ हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स का आइडिया डिस्कस किया था और फिर हमने इसको टेस्ट भी किया था। we had these two basis sets for R2। अगर मेरे पास R3 का प्रॉब्लम हो तो I will still have two bases, but each base will then have 3 vectors because R3 का basis जो है उसमें 3 vectors होंगे। और कौन से vectors होंगे? जिनके 3 components होंगे। तो वैसे जो हमने तरीका इख्तियार किया था ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने का, that help us transform a coordinates of a vector in one basis to coordinates of a vector into another basis and vice versa। जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स उसका इन्वर्स निकालने का तरीका बनाया था हमने कि भाई बी प्राइम के वेक्टर्स जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनको रिप्रेजेंट करें एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन बी। उसको सॉल्व करके इन बेसिस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालें इन बी। 2 3 का, -1 4 का एंड -1 4 का भी निकालें तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 11/7 -6/7। ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बना? बी प्राइम का फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट बेसिस के कोऑर्डिनेट्स पहले कॉलम पे और दूसरे बेसिस के कोऑर्डिनेट्स दूसरे कॉलम पे। सो दैट गिव्स यू ट्रांजिशन फ्रॉम बेसिस बी प्राइम टू बी। लिहाजा अगर बी प्राइम में रिलेटिव टू बी प्राइम इफ आई हैव अ वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स, उसको मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट the coordinates of the same vector relative to the other basis set, that is B। इनवर्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने क्या किया कि बेसिस B के जो वेक्टर्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B प्राइम लिखा और फिर इनके कोऑर्डिनेट्स B प्राइम में निकाले। दोनों बेसिस वेक्टर्स, इन दोनों बेसिस वेक्टर्स के
लीनियर कॉम्बिनेशन और या कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस बेसिस के रिलेटिव निकाले, और जो भी आए 6/11, 1/11, 1 - 1, and we place each of the results coordinates of a basis in columns and get the transition matrix from B to B prime. ये भी हमने नोट किया था कि ये ट्रांजिशन मैट्रिसेस जो हमने निकाले हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. That means these transition matrices from B prime to B and from B to B prime, they are inverses of each other. That gives us another idea. अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये भी किया कि आर्बिट्रेरी वेक्टर 5, 7 लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स B में निकाले, फिर 5, 7 के कोऑर्डिनेट्स भी B में निकाले, और फिर 5, 7 के कोऑर्डिनेट्स B में निकाले, 5, 7 के कोऑर्डिनेट्स हाँ, फिर 5, 7 के कोऑर्डिनेट्स B प्राइम में निकाले, तो B प्राइम में ये कोऑर्डिनेट्स आए. B में ये कोऑर्डिनेट्स हैं, B प्राइम में ये कोऑर्डिनेट्स हैं. अब इसको चेक किया कि मैं B प्राइम से B वाली ट्रांजिशन मैट्रिक्स को B प्राइम वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूं तो B वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. सिमिलरली इसके रिवर्स प्रोसेस करूं कि B टू B प्राइम वाला ट्रांजिशन मैट्रिक्स से B रिप्रेजेंटेशन जो है यानी B में जो कोऑर्डिनेट्स है वेक्टर के उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स में अप्लाई करूं तो B प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. दिस होल एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर R3. R3 के दो आर्बिट्री बेसिस लेकर हम उसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स हासिल करने के बाद हमारे पास ऐसा टूल आ जाता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस एक वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू वन बेसिस लिखे हुए हैं, तो देन वी कैन ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम वेक्टर relative to another basis. जो लोग अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं प्लीज. और क्योंकि आवाज मेरी आप लोगों को आ रही है साफ आवाज? जी सर. ओके. लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस आता है ना वो बड़ा कभी कभी ऐसा लगा है कोई पूछ रहा है, हो सकता है ना पूछ रहा हो, मुझे मुगालता हो रहा हो, किसी का माइक ऐसी खुल गया हो. So it's better कि whenever you have a query, please put it in a comment. A direct method of obtaining transition matrix, which is more practical in problem solving, चाहे आप R2 का problem deal कर रहे हैं या R3 का problem deal कर रहे हैं. What we do is कि हम जो basis set दिए हुए थे ऊपर हमें B में इन वेक्टर्स को कॉलम पे रखें, इन वेक्टर्स को कॉलम पे रखें, तो वी गेट टू मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर, और इनको ऑगमेंट कर लें. जैसे इन्वर्स निकालने के लिए हम अगर मुझे B का इन्वर्स निकालना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देता हूँ मैं इसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का B है. यहाँ पे हमने इस वक्त जो हमें दो बेसिस सेट्स दिए हुए हैं R2 के, उनके वेक्टर्स को कॉलम्स पे रख के एक मैट्रिक्स बनाया. इसी तरह दूसरे बेसिस के वेक्टर्स को कॉलम्स पे रख के दूसरा मैट्रिक्स बनाया, इनको ऑगमेंट कर दिया. अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करें रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में, तो B की जगह आइडेंटिटी आ जाएगा और B प्राइम की जगह we will obtain the transition matrix from B prime to B, जो पहले हमने एक लंबे प्रोसेस से हासिल किया था. और मैंने लंबे को बहुत लंबा करके इसलिए कहा है कि यहाँ तो दो वेक्टर्स थे ना R2 की प्रॉब्लम. लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, कोऑर्डिनेट्स निकाले, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, कोऑर्डिनेट्स निकाले. अगर मैं R4 की प्रॉब्लम कर रहा हूँ जिसमें दो बेसिस होंगे लेकिन चार वेक्टर्स होंगे, ईच विद 4 कंपोनेंट्स, तो 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उनको सॉल्व करूंगा, उससे कोऑर्डिनेट्स हासिल करूंगा, फिर जाके एक 4x4 ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगा.
it will be a very long process. And then the inverse transformation, and again the same a process of same length. But if you adopt this direct method, obtaining transition matrix becomes simple. तो आपको अगर आपको बेसिस दिया हुआ है R4 का, तो 4x4 मैट्रिक्स ये होगा, 4x4 मैट्रिक्स ये होगा, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म के आप एक्सरसाइजेस बहुत कर चुके। जब फर्स्ट पार्ट ऑफ 4x4 आइडेंटिटी बन जाएगा और बनेगा, क्योंकि बेसिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, बेसिस सेट का डिटरमिनेंट निकालो तो नॉन जीरो आता है, बेसिस सेट को मैट्रिक्स बना के उसको रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में लाओगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। तो जब तुम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, जो कि 4x4 यहाँ पे हो, 4x4 यहाँ पे हो, इस स्टेज पे पहुँचो कि जब पहला हिस्सा 4x4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो दूसरा हिस्सा 4x4 ऑर्डर का ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाए। इसका रिवर्स निकालना है तो बी प्राइम को पहले लिखो और बी को बाद में लिखो और फिर रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म निकालो। तो बी प्राइम वाला हिस्सा आइडेंटिटी बन गया, तो ये जो है ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू बी प्राइम। The same result that we obtained previously by linear combination, making linear combination, then writing down equations and starting the equation, getting the coordinates of the vector. So if there is a 3x3 problem or 4x4 problem, क्या आपसे कहा जाए कि जी आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालिए, so this direct method is to be used, which is always preferable. I think I discussed some of these problems in exercise 4.4 last time. Did I? There weren't many students in the class last time, लेकिन आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा है तो you should be aware कि ये प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी। अगर नहीं की थी तो मैं ब्रीफली आई कैन डिस्कस। आई एम नॉट वरीड अबाउट कि मेरे पास 17-18 लेक्चर हो गए हैं, 10 रह गए हैं और 10 में मैं क्या क्या कराऊंगा। जो भी करो अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि in words explain why the following set of vectors are not basis for the indicated vector. I think somebody was saying something like कि ये O level के बच्चों के सवालात हैं, हाँ? और I am mistaken. Anyways, क्यों बेसिस नहीं है? R2 के ये 3 वेक्टर्स क्यों बेसिस नहीं है? इसलिए कि R2 की डायमेंशन 2 है, जो हमने डिस्कस किया। इसका मतलब है R2 में सिर्फ 2 ही वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं हो सकते। R3 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस जो है उसकी बेसिस सेट में 3 वेक्टर्स होंगे। 2 वेक्टर्स से R3 नहीं बनेगा, 2 वेक्टर से हमें पता है कि प्लेन बनता है अगर वो 2 वेक्टर्स पैरेलल ना हो। इसी तरह P2 है, जिसको हम देख चुके हैं कि वो 3 डायमेंशनल है, तो 2 पोलिनोमियल वेक्टर्स जो हैं उनसे P2 पूरा जनरेट नहीं हो सकता। So these 2 vectors P1 and P2 do not form a basis for a set of all polynomials of degree up to 2. Now we have M22, the vector space of all 2x2 matrices. इसकी डायमेंशन की हमने बात नहीं की थी, लेकिन just let me remind you, if I'm talking about 2x2 matrices, X, Y, Z, W. इसकी डायमेंशन कितनी है? इस डायमेंशन आर्बिट्रेटली अगर आपके सामने मैट्रिसेस का सेट रख दिया जाए, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्पेसेस 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1. Why I'm saying start thinking about standard basis? क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस वो हैं कि जिसको x मल्टीप्लाई करो फिर प्लस y, सेकंड से मल्टीप्लाई करो प्लस z, तीसरे से मल्टीप्लाई करो प्लस w. So any 2x2 matrix is a linear combination of these four standard bases. So it is four-dimensional. This is a notation that we read as four-dimensional. So M22 is four-dimensional. हमें वेक्टर कितने दी हुई है? 1 2 3 4 5. फोर डायमेंशनल स्पेस में 5 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, लिहाजा ये फॉर्म नहीं करेंगे. एंड आई हैव जो जुबानी बातें की हैं वो मैंने कुछ छोटे छोटे जुमले लिख दिए. Then which of the following sets of vectors are bases of R2? तो ये दोनों वेक्टर्स बेसिस हैं. R2 के बेसिस सेट में 2 वेक्टर होने चाहिए और आपने सिर्फ ये देखना है कि एक जो है वो दूसरे का मल्टीपल है या नहीं. So this is a basis. This is also a basis of R2. This is not a basis of R2 because अगर आपने बेसिस सेट में 0 वेक्टर को शामिल कर लिया तो अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा. यानी अगर इन 2 वेक्टर्स को तुमने चेक करना हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है तो 0 0 1 3 डिटरमिनेंट निकालो and the determinant will be what? 0. So not linearly independent. जो set of vectors linearly independent नहीं हो सकता, जो linearly independent नहीं हो सकता, वो basis नहीं बन सकता. चौथा basis है. इसी तरह हम R3 के vectors में ये basis है, ये basis है. 3 vectors दिए में आप सिर्फ linearly independence check कर लीजिए. तीसरा वाला नहीं है. क्यों नहीं है तीसरा वाला? क्या हमने तीसरे वाले को कुछ करके देखा? 2 - 3 कुछ भी नहीं करके देखा. हमने बिला वजह कह दिया कि ये नहीं है. आई डिड नॉट वर्क आउट दिस. सर हमने किया है ना उसकी रोज को एक्सचेंज लाइक रिप्लेस करके. अच्छा. जो आपने साइड में किया. इसका सी का पार्ट सी का 3 का पार्ट सी आपने रिप्लेस किया है रोज. अच्छा 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 इंटरचेंज किया. 2 - 3 1 4 1 1 0 7 1. अच्छा. और डिटरमिनेंट निकाला. लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है ये. 0 आ गया डिटरमिनेंट. जब 0 आ गया डिटरमिनेंट तो ये बेसिस नहीं. इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा. तो चेक करने का सबसे पहला तरीका ये कि डिटरमिनेंट निकाल के देख लो ताकि ये पता चल जाए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. R3 है तो 3 वेक्टर्स काफ़ी हैं. स्पैनिंग चेक करने की जरूरत. हाँ, पोलिनोमियल के क्वेश्चन जो हैं उनमें ज़रा थोड़ा एहतियात रखें. देखिए मैंने पोलिनोमियल्स को कैसे डील किया है. 1 - 3 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो है ना उनसे मैंने कॉलम बनाया. 1 1 4 1 - 7 0 और उसका डिटरमिनेंट चेक किया. वो 0 नहीं आया तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. और P2 की डायमेंशन 3 है तो 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो बेसिस फॉर्म करेंगे. दिस फॉर्म्स द बेसिस. ये मैंने चेक नहीं किया, आपको हिंट दे दिया कैसे चेक करेंगे. ये वाला फिर चेक करके देखा. नोट दैट फर्स्ट पोलिनोमियल 1 + x + x स्क्वायर कोएफिशिएंट्स 1 1 1 x + x स्क्वायर 0 1 1 ओनली x स्क्वायर 0 0 1 और इसका डिटरमिनेंट 1 है. लीनियरली इंडिपेंडेंट है लिहाजा ये भी बेसिस है. इसको आप चेक कर लीजिएगा या मैंने चेक किया वही है. एनीवेज मोर प्रॉब्लम्स. हाँ मैंने ये पूछा था क्या मैंने इसमें से कुछ सवाल डिस्कस किए थे नहीं किए थे? नो रिस्पॉन्स. किए थे आपने. कहाँ तक किए थे?
4.5 के भी कर किए थे आपने, इसके नीचे 4.5 होगा। ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, पता है आजकल। कुछ तो ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, कुछ थोड़ी मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, वरना उम्र भर ऐसी गुजरी है कि ये याद होता था कि लास्ट टाइम क्या चीज़ डिस्कस की थी आखिरी। वैसे तो खैर मैं रिवाइज करता ही हूँ हर दफ़ा हर चीज़ को, मगर ये फाइल काफ़ी लंबी एक्सटेंड हो गई है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। 4.5 में क्या है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस। ओके, ये भी डिस्कस किए थे। गुड, DIY। Yes, I think I had discussed this. नहीं सर, ये वाले नहीं किए थे, शुरू के किए थे बस 4.5। अच्छा, okay, that is अच्छा 1 से 6 तक के लिए कह रहे हैं कि फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस। यहाँ पे आपको होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है। मुनीरा, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? ओके, अच्छा, तो 1 से 6 तक उसने कहा कि फाइंड द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द गिवन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। तो मेरा ख्याल है इसमें से मैं एक आध प्रॉब्लम जो है, ओके, आई कम टू 6 डायरेक्टली। हर जगह आपको देखना ये कि गिवन होमोजेनियस सिस्टम जो है उसके सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी। सो ब्रीफली इसीलिए मैंने कहा था इफ योर माइक इज नॉट वर्किंग, आप कमेंट लिख सकते, क्वेरी कर सकते हैं। एनीवे, मुझे जब भी होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग मैं मैट्रिक्स लिखूंगा और उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके यहाँ सिस्टम जो है उसमें 3 अननोन्स हैं, 4 इक्वेशंस हैं। जब सिस्टम को मैंने रिड्यूस किया तो सिर्फ 2 नॉन लीनियर रोज बची, और हमें पता चला साहब कि 3 अननोन्स में से एक अननोन ऐसा है जो कि जिसका लीडिंग वेरिएबल नहीं है। एक्स में कॉलम में लीडिंग वेरिएबल है, वाई के कॉलम में लीडिंग वेरिएबल है, जेड के कॉलम में लीडिंग वेरिएबल नहीं है। तो जेड इज अ फ्री वेरिएबल, वाई इज इक्वल टू -5 इंटू जेड एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड -5. So we get this as the solution space. Any vector of this form, that is 4s minus 5, 4s comma minus 5s comma s, where s can be any real number, is the solution space or set of all solutions of this and non-trivial solutions. कितने पैरामीटर आए? एक ही पैरामीटर आया, एक ही फ्री वेरिएबल था। तो डायमेंशन ऑफ solution space of a homogeneous system equation is the number of free parameters that you have in this solution space. We will be calling this to be null space later on. So एक ही पैरामीटर है, इसका मतलब है ये space, solution space जो है, this is spanned by only one vector. So this dimension is 1. Now if I look at some other question, find the basis of the following subspaces of R3. भाई ये प्लेन जो है, is this plane a subspace of R3 or not? एक तो ये सवाल है, और इस असल सवाल यहाँ पे ये है कि हमने बेसिस मालूम करना।
तो ज्योमेट्रिकली इस प्लेन के बारे में अगर आप सोचें तो क्या ये यकीनी है कि ये प्लेन जो है ओरिजिन से गुजर रहा है, जैसे जीरो वेक्टर इस प्लेन पे है? सो इंडिकेशन ऑफ होमोजेनस इक्वेशन tells you that zero vector is part of this set represented by this equation, the set of points x, y, z represented by this equation. Only one equation, आप इसको रिड्यूस करें, क्या करें, जो भी करें, मुझे इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है y and z are free variables. Z is equal to s, y is equal to t, and x is equal to, according to this equation, z की जगह s, y की जगह t, and we get, so x, y, z दो पैरामीटर्स हैं. s इन्वॉल्व हो रहा है x में ट्वाइस, y में है ही नहीं s, z में है. t -5 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है x में, 1 टाइम्स y में, और none टाइम्स z. So how many vectors, again, if a homogeneous system solved gives you two free variables, that means there are two linearly independent vectors that generate the solution space. So the basis vectors of that space are this vector and this vector. And I hope you can go through solutions for the other. Question number 8. इसमें मैंने सिर्फ बी अटेम्प्ट किया है. डायमेंशन के लिहाज से मैंने इसको डायरेक्टली 3 डायमेंशन लिख दिया. All vectors of this form in R4 जिसमें d की वैल्यू a plus b है और c की वैल्यू a minus b है. So d is equal to a plus b and c is equal to a minus b give me two equations. So that I have a vector of this subset of R4, first coordinate arbitrary, second coordinate arbitrary, but third coordinate is a minus b and fourth is a plus b. So corresponding equation बना दी जाए किससे? d is equal to a plus, क्योंकि हमें a b c d मालूम करने हैं. तो इन दो इक्वेशंस से हमने ए मैट्रिक्स बनाया, उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके जो शक्ल आई, अननोन थे ए बी सी डी, और हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस थी. तो सी और डी आर्बिट्री हैं, तो डी को एस रखा, सी को टी रखा, बी और ए की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी और एस निकाली, तो ए बी सी डी इज इक्वल टू. तो अब इस तरह के जो वेक्टर्स हैं उनसे R4 की जो सब स्पेस बन रही है वो किस शक्ल की बन रही है? जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उससे जो रिजल्टिंग सिस्टम इक्वेशन बना जिसके अननोन्स ए बी सी डी हैं, उनके सॉल्यूशन से हमें पता चला था आपके ए बी सी डी, एनी पॉइंट ऑफ द सेट represented by this condition is made up from two vectors. T and S can be any real numbers. So all linear combination of these two vectors make the subspace. And since there are two vectors or two free parameters in the solution of the corresponding homogeneous equation, so the subspace formed is a two-dimensional. ये मैट्रिसेस के सवालात जो हैं मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, बट आई एम स्किपिंग दिस बिकॉज जनरलाइज क्वेश्चंस हैं एन बाई एन. ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है अगर तुम्हारे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, रहने दो. यस, 4.6 हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लिए. मैं 4/6, 4.4, 4.5, 4.6, इसलिए मैंने सबसे पहले आज नज़र डाली थी कि हम आर्टिकल में से क्या क्या कर चुके. सो इफ़ आई गो बैक टू दैट कि मैं तुम्हें बता रहा था कि हम
क्या क्या कर चुके हैं, रियल वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, कोऑर्डिनेट्स एंड बेसिस, डायमेंशन डिस्कस कर चुके, चेंज ऑफ बेसिस डिस्कस कर चुके, रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस का भी आइडिया दे चुके, रैंक नलिटी की भी बात कर चुके हैं। तो मेरी जो इस वक्त एक्सरसाइज सॉल्विंग कैपेसिटी है दैट शुड be extended up to 4.8 or possibly 4.9 today इंशाल्लाह। तो 4.6 अच्छा, ये एक्सरसाइज जो हम पूरी नहीं करेंगे, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं सिर्फ उन कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर of W related to the basis of R2. So if you want to find the basis of in this basis, अगर आपने 1 1 के निकालने कोऑर्डिनेट्स तो आपने क्या करना है, आपने a टाइम्स 2, -4 लिखना है, हाँ ये लिखा हुआ था ना, b टाइम्स 3, 8 लिखना है, उसको इक्वेट कर देना है W के यानी 1 1 के। सिस्टम को सॉल्व करना है, जो सोल्यूशन आया वो 1 1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए रिलेटेड टू दिस बेसिस। इसी तरह अगले प्रॉब्लम में मैंने बेसिस सेट कौन सा लिया, ये वाला लिया, और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या है, असल में लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का प्रॉब्लम ही गिवन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू द गिवन बेसिस बन गई है। ये पहले हम कहते थे कि फाइंड वेदर दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस और नॉट। अब वो सवाल चेंज हो गया है, फाइंड वेदर दिस व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर। हाँ, एक सवाल ये भी था, फाइंड वेदर दिस वेक्टर इज इन द स्पेस जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। अब शक्ल उसकी हो गई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर रिलेटेड टू दिस बेसिस। और इन सब को करने का एक ही तरीका था, ये इक्वेशन लिखी, उससे सिस्टम इक्वेशन बनाया, उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस फॉर्म से हमें पता चला साहब कि सी की वैल्यू, ये कॉलम है ए का, ये कॉलम है बी का, ये कॉलम है सी का, तो सी की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 0, ए की वैल्यू आ गई 2। So vector 5, -12, 3 के coordinates related to these basis vectors are 2, 0, 1. I hope that gives you a pretty good idea what is meant by the statement given here at the top of the equation. Find the coordinate vector of V related to basis this. एक प्रॉब्लम पोलिनोमियल का भी देख लें। मैंने कौन से किया हुआ है, ये वाला किया हुआ है। हमें देखना है कि ये पोलिनोमियल जो है इसके कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू दिस बेसिस क्या है। सो P इज इक्वल टू AP1 प्लस BP2 प्लस CP3 मेक्स दिस इक्वेशन। लेफ्ट साइड के टर्म्स कांस्टेंट, terms involving x, terms involving x square, and then comparing coefficients. Constant a plus b is equal to 2, coefficient of x b plus c is equal to -1, b plus coefficient of x square b plus c is equal to 1. And these three equations written in form of matrix, column of a, column of b, column of c, right side constant. Reduce the system, solve it, and we find out that c is equal to -1 from here, b is equal to 1, minus of -1, so 2, a is equal to 2 minus 2, which is 0. अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इसमें a b c रखे और रख के देखा कि वाकई ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ये भी चेक किया। हाँ, अगर ये सही है वाकई तो यानी मैं यहाँ पर ABC की वैल्यू रखूँ तो यही पोलिनोमियल बन रहा कि नहीं बन रहा। यानी पहले मैंने ध्यान में एक सवाल था कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ
P is really a linear combination of P1, P2, P3? Yes, it is. उस linear combination में constant numbers इस्तेमाल हो रहे हैं, A0, B2 और C-1. इसका मतलब ये है कि इस polynomial के coordinates relative to this basis are 0, 2, -1. तो 0, 2, -1 coordinates पूछे उसने. ये वेक्टर अगर इन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके मैं पोलिनोमियल लिखूं तो इट शुड बी 0 + 2x - x². आप कहेंगे भाई ये तो इसके बराबर नहीं है. नहीं, ये इसके बराबर है. अगर मैं 0 × 1 + x 2 × 1 + x², क्योंकि बेसिस जो है ये तो मैंने स्टैंडर्ड बेसिस में लिख दिया. तो अब मुझे स्टैंडर्ड बेसिस नहीं लिखने हैं, मुझे तो ये वाले बेसिस इस्तेमाल कर, नॉन स्टैंडर्ड बेसिस. क्वेश्चन नंबर 8. वो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स वाला सवाल था, ये वो सवाल है जिसको मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, लेकिन हिंट के बजाय मैं चाहूँगा कि आप इसको यानी वो कि जी आपके पास पहला जो बेसिस है उसको रखें उस पर columns of first 3x3 matrix, make columns of second 3x3 matrix, augment them and reduce to echelon form, और उससे ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालें. अब जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स अच्छा, फिर W को this set is referred to as B and this is B prime. अब W के कंपोनेंट्स B के रिलेटिव निकालें, फिर W के कंपोनेंट्स B प्राइम के रिलेशन से निकालें, और फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स से देखें कि ये जो WB आएगा और WB प्राइम आएगा, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B प्राइम टू B, तो क्या ये वर्कआउट कर रहा है क्या नहीं कर रहा. तो जिस तरह से मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है 2x2 के लिए, उसको सामने रख के सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3x3 का प्रॉब्लम जो है वो आप इस लंबे तरीके से करने के बजाय डायरेक्टली कीजिए रिडक्शन मैट्रिक्स से. Would you like me to go through this problem right now? Or would you be able to do it yourself? ये दो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9. No response? Nobody interested? कमेंट कर दो, करवा दें. चलो अच्छा, इसको B कह लें, इसको B प्राइम कह लें. हाँ, आप लोग कर सकते हैं. One of the comment directly coming to me is that you can do it. 1, 1, 2 - 1, 1, 1. क्या हो गया? पेन क्यों बंद हो? Why the pen is not working?
1, 2, 1. First part of the augmented matrix, 3, 1, minus 5, 1, 1, minus 3, minus 1, 0, 2. इसको आप reduce करेंगे. So without thinking anything, any row interchange, I go directly. And that gives you 1, 1, 1 by 2, 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus R1 plus R2. Minus R1 plus R3. Minus 3 by 2, minus 5, minus 13 by 2. Minus half, minus 3, minus 7 by 2. Half plus 2, 5 by 2. Zahir hai कि when you deal with a larger matrix, you have to keep track of each step very carefully. Slight slip of mind or slip of pen may destroy the whole calculation. Second row multiplied by minus 1 by 2. You can multiply the third row by 1. Operation not done in a sequence जो मैं शुरू में कहा करता था. Once you are familiar with देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई ना 5 by 2 था. So 2 से multiply किया throughout ये 5. Now this element has to be converted to 0. So second row kept as it is. This row is already in our required format. Minus R2 plus R1. So minus 3 by 4 into minus 1. 3 by 4 plus 1 by 2. So what is 3 by 4 plus 1 by 2? 5 by 4. Minus 1 by 4 plus 3 by 2. Five by 4 again. Minus plus 1 by 4 plus 1 by 2. 3 by 4. Minus 1 by 4. 1 by 4 minus 1 by 2 is 1 minus 1 by 4. बस अब मैं बोर हो गया. Complete it yourself. इन दो एलिमेंट्स को 0 करना है तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ जाएगा. अच्छा जनाब, I had also started talking about spaces associated with a matrix. Given any matrix, there are 3 spaces always associated with the matrix.
One is called row space, the other is column space, and yet another is null space. If I have to find out the row space, it simply means that I have to find out of the given number of rows. अब ये देख लीजिए 4x4 मैट्रिक्स है, 4 रोज हैं, क्या चारों की चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? इस मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में लाए। जब इस मैट्रिक्स को हम इक्लान फॉर्म में लाए तो हमें पता लगा कि आखिरी रो 0 हो गई। और अब हम क्या कह रहे हैं कि एक रो के 0 हो जाने का मतलब ये है कि वो रो डिपेंडेंट थी। पहली 3 रोज इंडिपेंडेंट हैं। So first 3 rows of the given matrix are linearly independent. हाँ, ये जब दावा कीजिएगा जब रो इंटरचेंज किया जाए। तो इस प्रोसेस में रो इंटरचेंज ना करें तो बेहतर है, और करें तो फिर उसका ट्रैक रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें देखना है ना कि कौन सी रोज जो हैं वो linearly independent। If you don't need just number of non-zero rows की लास्ट फॉर्म, यानी ये 3 रोज लिख दो तो ये 3 रोज भी रो स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, और पहली 3 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनका सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी एक सब स्पेस को स्पैन कर रहा है। क्यों सब स्पेस का? मैंने R4 पूरी स्पैन नहीं हो सकती 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। 3 linearly independent vectors cannot span whole R4. So ये 3 linearly independent vectors in R4 is going to generate a subspace which is known as the row space of the given matrix. So formal writing down row space of a given matrix notation is this: A times first row plus B times second row plus C times third row, such that A, B, C are any real number. That is a span of the first 3 rows of the matrix, which are the first 3 rows are linearly independent. So this is the row space of the matrix. So कितने linearly independent vectors आए? हमारे पास 3 linearly independent vectors आए। वो जिस स्पेस को भी स्पैन कर रहे हैं उस स्पेस की डायमेंशन क्या आई? क्योंकि 3 linearly independent vectors से स्पेस बन रही है, the other dimension I3. We will verify this claim कि जो डायमेंशन रो स्पेस की आएगी वही कॉलम स्पेस की आएगी। हमने यहाँ लिख दिया, और साथ में हमने ये भी कह दिया कि अब 4 में R4 के अंदर बातें हो रही हैं, और डायमेंशन ऑफ रो स्पेस जो कि रैंक भी कहलाता है, जो कि इक्वल है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के। तो 4 में से 3 निकाल दें तो डायमेंशन नल स्पेस बनाएगी। दिस विल बी अ थ्योरम, विल नॉट गोइंग टू प्रूव इट बट यूज इट फ्रीक्वेंटली। अच्छा साहब, हमने रो स्पेस निकाली कैसे? गिवन मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करके। Here what we are doing, row reduction to get what? Row echelon form. This is not reduced echelon form, this is row echelon form. अगर मुझे कॉलम स्पेस निकालना जरूरी है तो मैं अब कॉलम रिडक्शन करूंगा, यानी कॉलम इक्लान फॉर्म निकालूंगा। इसमें फर्स्ट कॉलम के जरिए बकिया कॉलम्स के पहले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए -2 कॉलम 1 एडेड टू कॉलम 2। सो -2 + 2 -4 -1 -2 into -3 + 6 + 2 8 -2 into 0 0 0 + 3, and -3 column 1 added to column 3, -3 + 3 -6 + 2 9 + 1 0 + 6. To make this element 0, this is the first time in this course that we are using column reduction or column elementary operations.
So minus 4 times column 1 added to column 4. So minus 4 plus 4 is 0. Minus 8 plus 3 is minus 5. Minus 4 into minus 3 plus 12 minus 2, 10. 0 plus 5 is 5. After having work of column 1 completed, we look at the column 2. The leading element is now this 5. So इस column को minus 5 से divide करें. So minus 5 या minus 1 by 5 से multiply कर दिया. So minus 8 by 5, minus 3 by 5. Now the leading element of column 2 is in the required form 1. इसके जरिए अब इन दोनों elements को 0 बनाना है. Column operations में 4 times column 2 added to column 3 and 5 times column 2 added to column 4. So what we get after these operations, we have now this. And we see that after completing these operations, all the work of column 2 done, these two elements reduced to 0. Leading element in the third column is this, which becomes 1. If I multiplied the third column by 5 by 18, तो ये 5 by 18 से multiply किया तो ये भी 1, ये भी 1. Now the leading element is in the required form. इसके जरिए अब इस element को 0 करना है. Operation required is minus 2 times third column added to fourth column. And we see that there are only 3 non-zero columns left. The fourth column has vanished. So column rank of this matrix is again 3, number of non-zero columns. In the echelon form is the column rank. So only first 3 columns are linearly independent, and column space of A is what? First column, second column, third column is spanned by these 3 vectors, which are the basis of column space. So the dimension of column space is 3. And we have verified that the dimension of row space equal to dimension of column space is equal to rank of the matrix. जो रो रिड्यूस फॉर्म थी हमारे मैट्रिक्स की, जब हम रो स्पेस निकाल रहे थे, दिस वाज द रो रिड्यूस फॉर्म. जरा इसको उठा लें और समझ लें कि हम एक सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे. इस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म लाने का मतलब है अगर ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता x plus 2y plus 3z plus 4w is equal to 0 equal to 0 is equal to 0 equal to 0. अगर होमोजेनस सिस्टम होता उसको सॉल्व करने के लिए हम यही करते और यहाँ 0 0 0 होता. तो अब हमने रो रिड्यूस फॉर्म जो है उसको होमोजेनस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस्तेमाल कर. So W, the last variable, is arbitrary because last column has no leading element. Then Z is equal to minus 5 by 9 into W, which is T. Y is equal to minus of T minus of 4 by 5 into minus 5 by 19, blah, blah, blah. So we see that there is only one free parameter, and the null space, which is the solution space of this system, is the null space of the matrix A. हर component में T, common T को बाहर निकाल लिया. T is any real number, and that makes only one vector, one free variable. That means solution space is one dimensional. उस solution space को हम null space कह रहे हैं matrix A. और dimension of null space is 1. Dimension of null space के लिए term इस्तेमाल होती है nullity. जिस तरह dimension of row space और dimension of column space के लिए rank है, dimension of null space के लिए term है nullity. And we have observed in this example and other examples
that dimension of row space added to the dimension of null space will be equal to the number of columns of the matrix A. This is a theorem which we are not proving formally, but will verify in every question where we talk about row space, column space, blah, blah. Exercise 4.7 begins with very simple question. Can I list the row vectors and column vectors? So we row vectors R1, R2, R3. 3 row vectors and column vectors C1, C2, C3, C4. 4 column vectors. Then this is a 3 by 4 matrix. हमारे पास जितने कॉलम्स हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक रूल लिखा. इस मैट्रिक्स का जो रैंक निकालूंगा, इसकी जो नलिटी निकालूंगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4. रैंक इस मैट्रिक्स का ज्यादा 3 होगा. 3 रोज हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, 2 इंडिपेंडेंट हो सकती है, 1 इंडिपेंडेंट, व्हाटएवर. 3 से ज्यादा रोज ही नहीं है, तो 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहां से आएंगे? तो रो स्पेस विल नॉट बी मोर देन 3 डायमेंशन. चलिए साहब, उसने इस सवाल में कहा नहीं है, लेकिन रो स्पेस निकाल के दिखा दिया आपको, और पता चला साहब के रो रैंक 3 है. नो जीरो रोज, all rows are linearly independent. Row space is this. The dimension of row space is 3. जब यहाँ unique not unique solution. Row space is this. Column space भी निकाल के दिखा दी. Column space भी 3 dimensional आ गई. System equation corresponding consider किया AX is equal to 0, तो उसमें 1 पैरामीटर आ गया. 1 पैरामीटर आने का मतलब ये हो गया कि null space या solution space of the corresponding homogeneous system equation is 1 dimensional, and we verify that rank, which is the dimension of row space, nullity of A, which is the dimension of null space, 3 plus 1, 4, which is the number of columns of A. In the third problem of the exercise, determine whether B is in the column space of A. If so, express B as a linear combination of the column vectors of A. अच्छा साहब, मैंने इसमें पार्ट सी डिस्कस किया है. पार्ट सी में जो कॉलम्स हैं, वेयर इज पार्ट सी? ओके, वेक्टर 5 1 -1 इन कॉलम्स से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कॉलम 1 9 1 -1 3 1 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा स्केलर्स लगाए, जिन्हें कॉम्बिनेशन बनाया, सिस्टम इक्वेशन बन गया. सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि यूनिक आ गया, लिहाजा 5 1 1 वेक्टर 5 1 -1 is a linear combination of the 3 vectors, column vectors of the matrix. Columns are all independent. The column space is 3 dimensional, and that this vector 5 1 -1 lies in the column space. और उसके बाद ये जो हमने वेट्स निकाले थे, अल्फा बीटा गैमा, they are coordinates of 5 1 -1 in the basis of column space. Coordinates of this vector in the basis of column space. Question number 5, and look at this statement. In these questions, what you have to do? Find the vector form of the general solution of the given system AX is equal to B. Then use that solution, use that result to find the vector form of the solution of the corresponding homogeneous equation. इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर सी सेलेक्ट किया. कोई सा भी कर सकता था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. AX is equal to B को सॉल्व करना है, और क्या करना है उसके जरिए फिर AX is equal to 0 का सोल्यूशन निकालना है.
सी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, रिडक्शन की तो प्लस आपके only first row of the coefficient matrix survive, all other 3 rows are vanished. इसका मतलब है only 1 row is independent. यहां भी हमने ये देखा कि जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है उसमें सिर्फ पहला कांस्टेंट सरवाइव किया, बाकी तीनों जीरो हो गए। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और 3 फ्री पैरामीटर्स हैं, S1, S2, S3। ये X4 का कॉलम, ये X3 का कॉलम, ये X2 का कॉलम, ये तीनों फ्री पैरामीटर्स हैं। तो इस तरतीब में S1, S2, S3 लिखा और X1 इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज निकाला, एंड देन वी फाइंड कि X1 में एक कांस्टेंट आया, मगर X2, X3, X4 में कोई कांस्टेंट नहीं है। तो जो सॉल्यूशन मेरा आ रहा है, किसका सॉल्यूशन? सिस्टम AX इज इक्वल टू B का सॉल्यूशन। कांस्टेंट वेक्टर प्लस S1 into a vector of 4 component, S2 into a vector of 4 component, S3 into, जैसे कि हम infinitely many solutions लिखते हैं in terms of 3 parameters। तो अब ये जो है वेक्टर X is equal to X0 S plus S1 V1 plus S2 V2 plus S3 V3, ये और ये, these 3 vectors are on this geometrical object. We are in 4 dimension। मुझे नहीं पता है geometrical object क्या है, मगर मैं कहता हूं कि 4 dimension में 3 vectors which are not parallel to each other, they generate a subspace of 3 dimensions। लेकिन ये subspace इसलिए नहीं है इस वक्त X is equal to B का solution, इसके अंदर एक constant मौजूद है, यानी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इसमें 0 वेक्टर शामिल नहीं है। ओके जी, फ्रॉम Ax is equal to B, which is we obtain the vector form of the solution. This suggests solution of Ax is equal to 0 is what? सिर्फ ये वेक्टर उड़ा दो, जो कांस्टेंट इसके अंदर आया हुआ था ना वो उड़ा दो, so the rest of it is a solution to X is equal to 0। यकीन ना आए तो टू स्टार्ट विद यहाँ राइट साइड पे 0 0 0 रखो, 0 0 0 0 0 0, एंड वी विल हैव द सेम प्रोसीजर एक्सेप्ट कि ये x1 में -1 नहीं आएगा क्योंकि ये भी 0 है। चुनांचे Ax is equal to B का वेक्टर सोल्यूशन हासिल करके उस वेक्टर में से कांस्टेंट वेक्टर को गायब कर दें तो X is equal to 0 का सोल्यूशन आ जाता है। Find a basis for the null space of A। इसमें भी पता नहीं क्यों मैंने C क्वेश्चन सेलेक्ट किया। नल स्पेस का मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम बनाऊं मैं Ax is equal to B नहीं बल्कि 0। होमोजेनियस सिस्टम बनाऊं, उसको सॉल्व करूं, सॉल्व करके देखूं कि सोल्यूशन कितने फ्री पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पता लगा आपके 2 फ्री पैरामीटर्स आए, X3 और X4, और X1 और X2 इसके टर्म्स में लिखा। तो अब ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आए। The basis of null space is this: nullity or the dimension of null space is 2. Find a subset of the vectors that forms the basis of P for the space spanned by vectors 1 2 3 4। 4 वेक्टर्स हैं, 4 कंपोनेंट के। इसका मतलब ये चारों वेक्टर जो हैं वो R4 के वेक्टर्स हैं। पहले तो कह रहा है कि ये सबसेट है वेक्टर्स का, इसमें बेसिस फॉर्म कर रहे, फॉर्म द बेसिस फॉर द स्पेस स्पैन। R4 का बेसिस है ये नहीं है, तो बेसिस है ये नहीं है, पहला टेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट, चारों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ रो इंटरचेंज वगैरह किए हैं अगर मैंने, तो V1 और V4 इंडिपेंडेंट है। तो V1 और V4
अच्छा V1 और V4 क्यों इंडिपेंडेंट है? अगर मैं गौर करूं तो मुझे यहाँ देखने से नजर आ जाएगा। देखने से कैसे नजर आ रहा है? माइनस नहीं, V2 डिपेंडेंट है और V3 डिपेंडेंट है, ये क्लेम कर रहे हैं हम। हमने यहाँ पे कोई वो किया है, रो इंटरचेंज किया है, क्योंकि जब हमने कॉलम रो ऑपरेशन शुरू किए तो सेकंड रो 0 हो गई थी। जब सेकंड रो 0 हो गई थी तो फिर हमने तीसरी और चौथी रो जो है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें से कोई भी एक ऊपर ले आए तो V1 और V3 को भी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। एनीवेज, दो हमें इंडिपेंडेंट रोज मिली, उनसे जो स्पेस बन रही है वो रो स्पेस है। हाँ, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, कौन सा सवाल कर रहा हूँ यार? ये आई हैव बीन डूइंग पार्ट बी है सर, बी आप कर पार्ट रहा में हूँ। डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो इस इसलिए पे हमें V1 independent का और बता रहा था V4 जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है, और इसको -1/2 से मल्टीप्लाई नहीं, बाद देख लेना यार। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, मैंने एक तो दिखा दिया। V3 जो है मैंने कहा कि यार इसको चेक कर लेना कि ये V1 और V4 का कॉम्बिनेशन होगा। That takes me to the exercise 4.8. सर आज के लिए टाइम हो गया। हाँ, मैं रोक रहा हूँ, खुद ही रोक रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ की थकननेस का एहसास हो रहा है। 4.8 मैंने कहा था कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। रैंक एंड नलिटी मैट्रिक्स की निकालनी है और फिर वेरीफाई करना है डायमेंशन, और उसके अलावा भी कुछ और शुरू कर दूंगा मैं यहाँ से। और जो मैं इसके अलावा शुरू करूँगा वो ये शुरू करूँगा कि मेरे पास रो स्पेस जो आती है और नल स्पेस जो आती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों में कॉमन वेक्टर सिवाय 0 वेक्टर के और कुछ नहीं होता, और हम इस फैक्ट को यूं लिखते हैं और पढ़ते हैं कि रो स्पेस इज एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस, and null space is an orthogonal complement, is the orthogonal complement of row space. अब ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर, इस तो मैं बड़े आसानी से चेक कर लूंगा। रो स्पेस के जो मैंने वेक्टर्स निकाले इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, नल स्पेस के जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाले, उनके प्रोडक्ट लेके देख लो, डॉट प्रोडक्ट। अगर इसका हर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इसके हर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में 0 मिले तो ये प्रूव हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आई विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, एंड आई स्टॉप एट दिस पॉइंट। यस, आई नो टुडेज लेक्चर वाज थोड़ा सा रिपीटेटिव भी था और उसके बाद थोड़ा सा हैवी था। विद दिस कमेंट आई स्टॉप